On this very program yesterday, we highlighted how the Health Ministry has relaxed qualifying cutoffs for NEET PG in an attempt to fill thousands of postgraduate medical seats lying vacant across the country. That decision has sharply divided opinions. While some argue that capable doctors should not be shut out from missing a high percentile, others believe that the move actually strikes at the very core of merit in the medical education system. India's premier medical body, the Indian Medical Association, has welcomed the Health Ministry's order. In fact, they had written to the Health Ministry saying that they want it to be done because the country lacks doctors. We need more. The IMA says lowering the cutoffs will strengthen healthcare delivery by preventing large-scale vacancies in PG medical seats and ensuring more specialists enter the system. But today, we focus on the other side of the debate as well. The voices that are angry, they are alarmed, and they are openly opposing the move. Two of the most influential resident doctor bodies in the country, FODA and FIMA, have written now to the Health Ministry expressing strong disapproval. One of them says that the decision compromises merit and raises serious questions about the credibility of the medical profession itself. The body warns that such dilution will erode public trust in doctors, a profession where competence can be a matter of life and death. The other body has gone a step further. It has demanded an immediate rollback of the order and has threatened a nationwide protest if the government does not reconsider. For those who may have missed the discussion yesterday, here's the key fact. For NEET PG 2025 or 26 now, the Health Ministry has slashed qualifying percentiles to unprecedented lows. The general category candidates who earlier needed about 50th percentile, that's about some 173 to 200 marks out of 800, can now qualify at just 7th percentile. SC, ST, OBC, the PWBD candidates can enter as low as 0 percentile, where the marks go minus 40. That's effectively no cutoff at all. You just give the examination and you're in. In practical terms, a candidate has a reserved category scoring as low as minus 40 is still eligible for round 3 of counselling of PG medical seats. The question, however, still remains. Is this the only way to fill up those vacant 18,000 seats? Yes, India needs more doctors, but do we need any kind of doctor? Do we need more specialized, dedicated doctors? Where exactly is this going and what should be done? Joining us next, we got you doctors yesterday and we've got more of them joining the program today as well. But let me give the first argument there, the first comment to a student of NEET. Ravi Shankar Gupta is a NEET aspirant. He joins us from Kota, which is famous for producing so many doctors and especially for their NEET coachings as well. Ravi Shankar Gupta, hello and welcome. फर्स्ट मुझे बताइए कि अभी आप कौन से ईयर की तैयारी कर रहे हैं और फिर हमें बताइए ये जो परसेंटाइल कम हो गए हैं उससे आपका क्या कहना है और कोटा में कैसा माहौल है अभी? मैं अभी नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कोटा से, मोशन इंस्टीट्यूट से। और मेरा बस यही कहना है कि जो परसेंटाइल है इतना लो नहीं होना चाहिए ताकि अपने जो पब्लिक हेल्थ केयर है, सेफ्टी है, इसके बारे में बहुत कम परसेंटाइल पे क्या बोलते हैं, कम परसेंटाइल पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ केयर का बात है। एक मामूली कोई छोटी चीज नहीं है। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में अपन जो है सोचना चाहिए कि इतनी नेगेटिव परसेंटाइल पे इतना एडमिशन लेना है गवर्नमेंट को और जो मेडिकल अपना फील्ड है उसके बारे में। रवि जी, मुझे तो लग रहा था स्टूडेंट्स बड़े खुश होंगे कि मार्क्स अब जल्दी आसानी से एंट्री हो जाएगी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो ट्रू डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो देश को सर्व करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, स्टूडेंट के खुश होने पे कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि पब्लिक का हेल्थ इशू है, पब्लिक सेफ है या नहीं। ये अभी के लिए खुश होने की बात है, लेकिन आज से 5 साल बाद वही आगे जाके बड़े डॉक्टर बनेंगे तो ये सोचने वाली बात है। पहले भी कोरोना हो गया था, पेपर लीक, तो उसमें भी चोरी या ऐसे वैसे करके बहुत लोग पहुंच गए थे मेडिकल कॉलेज। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इतने कम मार्क्स पे कोई कॉलेज में जाएगा तो ये
उतना अच्छी बात नहीं है। मतलब वैसे भी इंडिया का जो रैंकिंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 197 कंट्री में से अपना 66 रैंक है। तो ये उतना अच्छा संकेत नहीं है अपने देश के लिए। रवि जी, बहुत ही उम्दा आपने बात करी, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि कोटा में जो प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन बहुत डिबेट होती है, इस यस। मूव के बाद क्या माहौल है? अभी तो जितने एंटी रिजर्वेशन है वो बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो एक मुद्दा मिला बात करने के लिए, तो क्या ये डिबेट इग्नाइट हो गई है फिर से? यस मैम, ये डिबेट जो है बहुत एक्सप्लोसिव हो गई है, क्योंकि ये पहले तो रिजर्वेशन जो है मतलब मामले पे एक लिमिट तक सही है, लेकिन उसके आगे ये रिजर्वेशन सही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ऊपर से ये जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनको ये इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि कम कट ऑफ पे वो तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जो मतलब जो अपने देश का हेल्थ केयर है वो सुधर नहीं पाएगा। ये तो ऑलरेडी पहले से डैमेज है, ऊपर से ऐसे सिस्टम ला कर ऐसे कम मार्क्स पे एडमिशन लेके अपन जो है अपने हेल्थ केयर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपने बहुत ही समझदार बात करी है। पर मुझे रवि एक और बात बताइए, आपके हिसाब से ये सीट्स वेकेंट जाती क्यों हैं? क्यों लोग पीजी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मतलब लोग जो अपना अपना ऑफिस खोल दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब क्या बोलते हैं, किसी अदर हॉस्पिटल में काम करने लग रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद में, या फिर कोई जो अदर जॉब्स करने लग रहे हैं। लोग जो है मतलब उतना लंबा तो जर्नी तय नहीं करना चाहते हैं नीट पीजी के बाद। और ऊपर से लोग मतलब नीट पीजी में उतने सीरियस नहीं लेते हैं इस मतलब प्रोफेशन को आगे जाके। अब और दूसरी बात ये है कि अपन जो है एमबीबीएस के बाद में लोग जो है बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन लोग एक ही पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया, कार्डियो हो गया, यही सब में जाना है, बाकी और सब फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं। जी। रविशंकर गुप्ता, हमसे अपनी बात इतनी अच्छे से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको गुड लक। आप थैंक पढ़ाई यू। करें, देश को आपके जैसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जो कह रहे हैं एग्ज़ाम को टफ बनाइए लेकिन अच्छे डॉक्टर निकालिए। आई थिंक ये देश को ऐसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। सो गुड लक टू यू एंड व्हेन यू सिट इन फॉर योर एग्जामिनेशन।